اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید والقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. درود بھیجے محمد ان کے آل پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دن کو ذریعہ معاش قرار دیا اور رات کو باعث سکون بنایا اور اس پورے کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا اور انسان کو اپنے لیے خاص بنا کر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. درود و سلام محمد اور آل محمد کی پاک ہستیوں پر. سامعین محترم، الحمدللہ یہ فرش عزا جو بچھایا گیا ہے، سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی بانیان مجلس کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین کو اس وبا سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے اور اس زمین کے وارث امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ کافی مومنین کافی وقت ہو چکا ہے، مومنین بھی تھکے ہوئے ہیں، اس ذکر کو شروع کرتے ہیں. یہ گھر اتنا خوش نصیب ہے جس کی ابتدا ذکر امام حسین علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اور وہ مومنین کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت اس فرش عزا پر موجود ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام فرش نہیں ہے بلکہ یہ وہ فرش ہے جس پر عرش والے بیٹھنے کے لیے ترسا کرتے ہیں. اور اسی لیے تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. ایک کوئی شخص اس مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، تو اس دن جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو اس شخص کا دل زندہ ہوگا. ایک بات یہاں پر میں ذکر کرتا ہوا چلوں، ابھی عاشور کا دن جو گزرا، کربلا معلی میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے 50 لاکھ سے زیادہ مومنین کربلا معلی میں موجود تھے. اور عاشور کے دن جو رقصہ توارج کیا جاتا ہے اس میں 20 لاکھ مومنین نے شرکت کی، اور حرم امام حسین کی رپورٹ کے مطابق ان 20 لاکھ افراد میں ایک شخص بھی کرونا کا مریض نہ تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ در حسین وہ در ہے جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے سب سے پہلا مریض عرش سے فطرس شفا لے کر جاتا ہے. اور آج اتنے مشکل اور کٹھن زمانے میں جب کرونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، لیکن در حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ میں کل بھی شفا دے رہا تھا اور آج بھی شفا دے رہا ہوں. یقیناً ذکر امام حسین علیہ السلام ہی وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی مل رہی ہے اور آخرت میں تو یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے. امام رضا علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام ریان ابن شبیب ملتا ہے، وہ یہ نقل فرماتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے دن میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. تب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یبن شبیب ان کنتا باکیا فبکی علی الحسین.
ابن शबीब अगर किसी चीज पर रोना चाहते हो तो हुसैन पर गिरिया करो। और मौला ने फरमाया इब्न शबीब इन सर्रका अन तकूना माना फि दरजातिल उला फहजुन लिहुज़निना वफरह लिफरहिना। मौला फरमाते हैं इब्न शबीब अगर तू ये चाहता है कि हमारे साथ जन्नत के आला मंजिलों पर तू हमारे साथ हो तो हमारी खुशी में खुश हुआ करो और हमारी गमी में मगमून हुआ करो। और मौला फरमाते हैं अगर कोई शख्स फलो अन्ना रजुलन अहब्बा हजरन, अगर कोई शख्स एक पत्थर से मोहब्बत करेगा लहशरहुल्लाहु यौमल क़यामत माहू, अल्लाह कल कयामत के दिन उस शख्स को उसी पत्थर के साथ महशूर करेगा। और यकीनन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले इस दुनिया में भी मौला हुसैन की शफाअत के तालिब हैं और आखिरत में जिसे आप ज़ियारत आशुरा का वो जुमला पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफाअतल हुसैन यौमल वुरूद, परवरदिगारा हमें उस दिन मौला हुसैन की शफाअत अता करना जब हम कब्र में वारिद हो रहे हों। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र और आए रसूल खुदा की खिदमत में चलकर सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह आप बताएं कौन सी चीजें हैं जो हमें आखिरत में फायदा पहुंचाएंगी। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा ताकि चंद आराइज आपके सामने जल्दी जल्दी से पेश करके आपकी ज़हमतें तमाम करूं। अबू सईद खुदरी इस रिवायत को नकल करते हैं कि एक मर्तबा पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले आते हैं और आकर सवाल करते हैं क्या आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है। दूसरे दिन आकर ये सवाल करते हैं क्या आज किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं एक दिन रसूल खुदा खुद इरशाद फरमाते हैं आज मैंने एक ख्वाब देखा है। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कौन सा ख्वाब देखा है, जरा हमें भी बताएं। रसूल फरमाते हैं आज मैंने ख्वाब में अपने चचा हजरत हमजा को देखा है और अपने कजन जाफर तैयार को देखा है। किस हालत में देखा। रसूल फरमा रहे हैं उन दोनों के सामने जन्नत की एक तश्त पड़ा हुआ है, जन्नती तश्त जिसमें 3 पड़े हुए हैं। रसूल फरमाते हैं ये दोनों 3 तनावुल कर रहे हैं और मैंने इनसे सवाल किया कि आप दोनों ने आखिरत में किस अमल के अजर को सबसे ज्यादा पाया। इन दोनों ने मिलकर जवाब दिया या रसूल अल्लाह अस्सलात व हुब्बु अली इब्न अबी तालिब व इख्फाउ सदक़ते। ये फरमाते हैं या रसूल अल्लाह 3 चीजें ऐसी हैं जिनका अजर हमने कब्र में सबसे ज्यादा देखा। पहली चीज नमाज, दूसरी चीज अली अमीर अल मोमिनीन की मोहब्बत और तीसरी चीज सदके को मख्फी तौर पर देना। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद उनकी आल। अब हम देखें आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को जिंदा किया जा रहा है। क्या सबब है कि चाहे जो शख्स मोमिन है वो भी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है, जो मौला हुसैन को मासूम समझता है वो भी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है, जो इमाम हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाला है वो भी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है, जो इमाम हुसैन के नाना का कलमा नहीं पढ़ता वो भी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है। सबब क्या है? वैसे तो उलमा ने बहुत सारे असबाब जिक्र किए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जो बात अल्लामा मजलिसी ने अपनी किताब हयातुल कुलूब में नकल की है उसको जिक्र करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा
ये बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा बचपन के आलम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल और उनकी वालिदा बीबी हाजरा को मक्का की उस सरजमीन पर छोड़ा जहां पर ना कोई आबादी है, जहां पर ना कोई सब्जा है, जहां पर ना लोग रहते हैं, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और रेतीली जमीन है। बीबी हाजरा ने चीख मारकर कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं? ये राशन कितने दिन चलेगा? जनाब इब्राहिम ने कोई तवज्जो न दी, किसी शख्स से मदद तलब न की, आसमान की जानिब देखा और खुदा की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37। परवरदिगारा, मैं अपनी ज़ुर्रियत में से बाज औलाद को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ? बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, ऐसी वादी में छोड़कर जा रहा हूँ जो बंजर वादी है। गोया के जनाबे इब्राहिम खुदा को बतलाना चाह रहे हैं, परवरदिगारा ये बंजर जमीन है, क्या खुदा को पता नहीं है मक्का में ना आबादी है, ना कोई सब्जा है? उलमा बयान फरमाते हैं ये भी मांगने का एक तरीका है। इसीलिए रिवायत में हमें मिलता है मासूर दुआएं पढ़ी जाएं जो अहल बैत से हम तक पहुंची हैं। जनाब इब्राहिम ये कहते हैं, परवरदिगारा तू जानता है एक बूढ़े बाप के लिए जवान बेटे को और अपनी जोजा को ऐसी सरजमीन पर छोड़ना जहां पर कोई आबादी नहीं है, बंजर जमीन है, लेकिन तेरे अमर की इताअत की वजह से छोड़कर जा रहा। उसके बाद ये जनाब इब्राहिम फरमाते हैं, मैं इस वजह से छोड़कर जा रहा हूं, रब्बना ले युकीमुस सलात, परवरदिगार ताकि ये नमाज को कायम करें। अच्छा इब्राहिम, इसके एवज में तू क्या चाहता है? जनाब इब्राहिम ने अर्ज किया, परवरदिगार फजअल अफइदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, परवरदिगार लोगों के दिलों को मेरी ज़ुर्रियत की तरफ माइल कर दे, जो भी इनको देखे इनकी मोहब्बत में इनका गर्विदा हो जाए। आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या खलीलुल्लाह की दुआ कबूल हुई या कबूल नहीं हुई? खुदा तो एक आम इंसान के लिए ये इरशाद फरमा रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ तलब करो, मैं तुम्हारी दुआ को मुस्तजाब करने वाला हूं। यकीनन जनाब इब्राहिम की दुआ मुस्तजाब हुई। जब जनाब इस्माइल को प्यास लगी, बीबी हाजरा सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाती हैं। बीबी ने दौड़ना शुरू किया, वापस आई, क्या देखा? जनाब इस्माइल के पांव से पानी का चश्मा फूट रहा है, आबे जमजम जारी हो चुका है। आपको पता है जहां पर पानी होता है वहां पर परिंदे आ जाते हैं। जब परिंदों का झुरमट वहां पहुंचा, जो कारवान तिजारत के लिए दूर से जा रहे थे, जब उन्होंने देखा कि परिंदे हैं, इसका मतलब है वहां पानी हमें मिलेगा। एक कबीला जिसका नाम जुरहम मिलता है, वो कबीला वहां पर आया, क्या देखा? पानी तो है लेकिन एक अजीब चीज देखने को मिली। इस बयाबान में बंजर जमीन पर एक खातून अपने छोटे बच्चे के साथ है। जैसे ही उस कबीले की नजर जनाब इब्राहिम के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, जनाब इस्माइल की मोहब्बत इनके दिलों में इस कदर बैठ गई कि इन्होंने अपनी तिजारत का इरादा तर्क कर दिया। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या जनाब इब्राहिम की ज़ुर्रियत हजरत इस्माइल तक खत्म हुई? नहीं अजीजों, जनाब इस्माइल तक हजरत इब्राहिम की ज़ुर्रियत खत्म न हुई, बल्कि ये सिलसिला आगे चलता हुआ हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये इरशाद फरमाया करते थे, काना अभी इब्राहिम गय्यूरन व अना अगयरु मिनहुम, कि मेरे वाले जनाब इब्राहिम गैरतमंद हैं लेकिन मैं उनसे ज्यादा हूं। एक जो इमाम हुसैन की मोहब्बत तमाम इंसानों के दिलों में पाई जाती है, एक नतीजा है हजरत इब्राहिम की दुआ का, और दूसरा नतीजा है इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी का, कि मौला अपने पूरे कुंबे को लेकर करबला के मैदान में आ जाते हैं और दीन की हिफाजत के लिए अपने पूरे घर को दीन पर कुर्बान कर दिया। एक तरफ से जनाब इब्राहिम अपनी जुर्रियत की मोहब्बत मांग रहे हैं, लेकिन कुरान में हमें दूसरी मकाम पर इरशाद मिला, रसूल खुदा ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जब किसी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आप इतनी जहमतें कर रहे हैं, आपने खुदा की तौहीद को पहुंचाया हम तक, इसका एवज क्या चाहिए, इसके बदले में कुछ चाहिए? नबी फरमाते हैं कुरान की आयत, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहता सिवाय अजर रिसालत, ये चाहता हूं कि मेरी अहल बैत की मवद्दत तुम्हारे दिलों में पाई जाए। तो ये नतीजा है इन नबियों की दुआओं का। अब दोबारा मैं अपने मौजू की तरफ आ जाऊं। मैंने आपके सामने सूरह अनाम आयत नंबर 153 में से पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, बतहकीक यही मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो। इस रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर न जाना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। आए देखें तारीख में वो कौन सा रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है, जिस रास्ते को अल्लाह ने अपना रास्ता करार दिया है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अहम बात और एक अहम रिवायत आपके सामने पेश करने लगा हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि वो रास्ता कौन सा है। शेख सुद्दूक अलैहि रहमा अपनी किताब सवाबुल आमाल में इस रिवायत को नकल करते हैं। अबू सईद खुदरी वो नकल फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अपने सहाबा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे और नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत, जो शख्स भी कलमे तौहीद को अपनी जुबान पर जारी करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फकामा रजुलान, वहां पर दो शख्स खड़े हुए जिनको हमेशा जल्दी हुआ करती थी उठने की, वहां पर खड़े हो जाते हैं और उन्होंने कहा, फकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, या रसूलल्लाह हम आपके महजर में, हम आपकी खिदमत में कलमे तौहीद अपनी जुबान पर जारी करते हैं। एक मर्तबा ये कहा, नबी अकरम ने दोबारा इरशाद फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत, जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद को अपनी जुबान पर जारी करेगा वो जन्नत में जाएगा। दोबारा ये शख्स खड़े हो जाते हैं, दोबारा इन दोनों ने कलिमा पढ़ा। नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा तुक़ब्बला हाज़िही शहादा मिन हाज़ा व मिन शियतिही, इस कलिमे तौहीद को इनसे और इनके शियों से कबूल किया जाएगा। दोबारा ये दोनों खड़े हो जाते हैं, इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर रसूल अकरम ने अपने हाथ मुबारक को अमीर अल मोमिनीन के सर पर रखा और फरमाया, जो शख्स इसकी विलायत रखेगा और उसके बाद कलिमा तौहीद को अपनी जुबान पर जारी करेगा, तब ये कलिमा तौहीद उससे कबूल किया जाएगा। रसूल फरमाते हैं उसकी अलामत ये है, अल्लाह तहिल्ला अक़दहु, इसकी बैयत को नहीं तोड़ेगा, व अल्लाह तजलिसा मजलिसहु, इसकी जगह पर नहीं बैठेगा, व अल्लाह तकज़िबा हदीसहु, और इसकी बात को नहीं झुटलाएगा। नबी की हदीस से और खुदा के फरमान से हमें ये पता चला
अमीर अल मोमिनीन ही वो अजीम हस्ती हैं जिनकी विलायत की वजह से कलमे तौहीद को कबूल किया जाता है। अब जो कोई भी अली की बैयत को तोड़े, अली के मुकाबले में आए, जिस किसी मैदान में आए, जिस किसी सवारी पर आए, वो गोया कि हक के मुकाबले में आ रहा है। और नबी ने फरमाया अल हक माल अली वल अली माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। दुरूद भेजे मोहम्मद उनकी आल पर। यकीनन वो अजीम हस्ती अमीर अल मोमिनीन की जात है जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम का है। इसीलिए तो उलमा इरशाद फरमाते हैं, ये रिवायत मक्तल ख्वारज़मी में किताब अहले सुन्नत, वहां पर आपको मिल जाएगी। खलीफे दुवूम के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने उमर वो पाक पैगंबर से इस हदीस को नकल करते हैं कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब अलियन क़बिलल्लाहु सलातहु व सियामहु वस्तजाब दुआहु, जो शख्स भी मेरे भाई अली की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देगा, खुदा उसकी नमाज को कबूल करेगा, खुदा उसकी दुआओं को कबूल करेगा, खुदा उसके रोजों को कबूल करेगा। अली की मोहब्बत वो कोई आम मोहब्बत नहीं है। अली की मोहब्बत की वजह से अल्लाह नमाज को कबूल करता है। अली की मोहब्बत की वजह से अल्लाह रोजों को कबूल करता है। अली की मोहब्बत की वजह से अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। इसीलिए तो हमें रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा अमीर अल मोमिनीन किसी काम से मदीने से बाहर निकले, 7 दिन हुए मौलाए कायनात वापस ना आए। रसूल खुदा ने दस्ते दुआ को बुलंद किया और कहा परवरदिगारा अल्लाहुम्मा रुद्द अलियन कुर्रता ऐनी, परवरदिगारा मेरे भाई अली को वापस लौटा दे मेरी जानिब, जो मेरी आंखों की ठंडक है। वो अमीर अल मोमिनीन जो रसूल की आंखों की ठंडक है। और उसके बाद नबी ने फरमाया जो कोई भी मेरे भाई अली के आने की मुझे खबर देगा, मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। फजल इब्ने अब्बास वो सबसे पहले आकर रसूल खुदा को अमीर अल मोमिनीन के आने की खबर देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक जुमला कहता हुआ आगे बढ़ूं कि वो अजीम हस्ती जो रसूल खुदा के चेहरे से गमों को दूर करे, वो अली अमीर अल मोमिनीन की जात है। और वो अजीम हस्ती जो मजलूम करबला हुसैन इब्ने अली के चेहरे से परेशानियों को दूर करे, वो अब्बास इब्ने अली है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बस अज़ादारों, जितने फजाइल पढ़े जाएं, लेकिन अगर जिक्र मसाइब न हो तो मजलिस अधूरी रह जाती है। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, कुछ मालूमात पेश करनी थी, लेकिन छठे इमाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम सुकूनी मिलता है। वो मौला की खिदमत में आते हैं। मौला ने उनसे पूछा कि बेटी का नाम क्या रखा है। उस शख्स ने कहा मौला मैंने आपकी दादी फातिमा की मोहब्बत में इसका नाम फातिमा रखा है। बस अज़ादारों, छठे इमाम ने अपने हाथ को पेशानी पर रखा और 3 मर्तबा आ आ
आह की सदा को बुलंद किया और इमाम ने फरमाया, जब तूने इसका नाम फातिमा रखा है तो कभी भी इसको तमाचा न मारना, कभी भी इसको गाली न देना। मैं कहूं मौला, नहीं मालूम आपको कौन सा वक्त याद आ गया, मौला नहीं मालूम आपको कौन सा तमाचा याद आ गया, नाम फातिमा आपने सुना है, रुकमाल ज़हरा, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस अज़ादारों, नजफ अशरफ के बहुत बड़े आलिम दीन हैं आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी। वो एक मर्तबा हज करके वापस आए, एक शख्स मिलने गया मुलाकात के लिए, सवाल किया, आयतुल्लाह आपका हज कैसे हुआ? आयतुल्लाह अमीनी ने फरमाया, मदीने की गलियां बड़ी खूबसूरत थी, खुदा के घर में बड़ी रौनक लगी हुई थी। उस शख्स ने कहा, मैंने किसी आम बंदे से सवाल नहीं किया, मैंने आयतुल्लाह अमीनी से सवाल किया। बस अजीजो, आयतुल्लाह अमीनी ने अपने सर को झुकाया और बिलक बिलक कर रोना शुरू किया। आयतुल्लाह अमीनी ने कहा, मैं क्या बताऊं, आज भी मुझे जन्नतुल बकी से ज़हरा के रोने की आवाज आती है। अजरुहुम अला ज़हरा। इसी आलिम से सवाल किया गया, आपकी जिंदगी की कोई ख्वाहिश है? आयतुल्लाह अमीनी ने कहा, हाँ, मेरी एक तमन्ना है कि खुदा मुझे 50 साल जिंदगी अता करे। उसमें शर्तें ये हैं, ना उस जिंदगी में खाना हो, ना उस जिंदगी में पीना हो, ना उस जिंदगी में सोना हो। पूछा गया, 50 साल जिंदगी का क्या करेंगे? आयतुल्लाह अमीनी ने कहा, मैं 50 साल बैठकर मुसलसल गुर्बत अली पर गिरिया करना चाहता हूँ। हाय मजलूम अली अमीर अल मोमिनीन, जो आजादार ज़हरा है। आजादारों, एक मर्तबा इब्ने अब्बास ने क्या देखा, अमीर अल मोमिनीन की रीशे मुबारक सफेद हो चुकी है। इब्ने अब्बास ने अर्ज किया, मौला आप खिजाब क्यों नहीं करते? इमाम ने फरमाया, मैं आजादार हूँ। इब्ने अब्बास ने कहा, मौला किसके आजादार? मौला रोकर फरमाते हैं, मैं मजलूमा ज़हरा का आजादार। अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ आजादारों, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी वो ये फरमाते हैं, अगर तुम लोग ये चाहते हो कब्र में पहली रात आपके सिरहाने अमीर अल मोमिनीन आपकी मदद को आए, तो ज़हरा की मुसीबत को जितना हो सके इतना बयान करें। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस चाहता हूं 2 जुमले मखदूम कौनैन की मुसीबत के आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बस आजादारों, शेख अब्बास कुम्मी ने बैतुल अहज़ान में लिखा कि अभी 7 दिन न गुजरे रसूल की रहलत को कि नबी ज़ादी ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। या अबता सुब्बत अलैया मसाइबो लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लिया। बाबा आपके जाने के बाद बाबा जरा ये तो देखें, आपकी कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई। इन मुसलमानों ने मेरा दरवाजा जलाया, मेरा पहलू को शिकस्ता किया, मेरे मोहसिन को शहीद किया। अजरुकुम अला ज़हरा। बस आजादारों, एक मर्तबा बीबी ज़हरा घर से निकलती हैं, नबी की कब्र पर पहुंची और कहा, बाबा अब आपकी बेटी ज़हरा इस दुनिया से थक चुकी है, बाबा मुझे अपने पास बुला ले। आखिर में इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती सरिया, परवरदिगारा ज़हरा को जल्दी मौत दे दे। आप साहिबाने औलाद हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब कभी कोई मस्तूर बीमार हो जाती है, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हों, वो खुदा से दुआ करती है, परवरदिगारा मुझे सेहत दे, मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना बना कर दूं, उनकी तरबियत करूं। हाय नबी की बेटी 7 दिनों में इतनी मसाइब से थक चुकी। बीबी ने कहा, परवरदिगारा नबी की कब्र का वास्ता ज़हरा को जल्दी मौत दे दे। अजरुकुम अला ज़हरा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। बस आजादारों, मैं मुख्तसर करूं, एक मर्तबा बीबी घर को आई,
75 से 90 दिन गुजरे हैं कि हसन हुसैन मस्जिद में आते हैं और रोकर करते हैं, बाबा हम यतीम हो गए, बाबा हमारी माँ इस दुनिया में न रही। एक मर्तबा वो अमीर अल मोमिनीन, खैबर शिकन अमीर अल मोमिनीन उठना चाहते हैं, एक मर्तबा उठते हैं, गिर जाते हैं खाके मदीना पर, या ज़हरा का नारा बुलंद करते हुए दोबारा उठने की कोशिश करते हैं। बस अज़ादारों, अमीर अल मोमिनीन या ज़हरा का नारा पुकारते हुए घर पर पहुंचे, जनाबे ज़हरा के करीब आकर बैठे। एक मर्तबा कहा, ज़हरा मुझसे बात करो, कोई आवाज नहीं आई। दोबारा कहा, नबी की बेटी मुझसे बात करो, कोई आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा मौला ने फरमाया, या ज़हरा कल्लमीनी अना बालिकल मज़लूम, ज़हरा मुझसे बात करो, मैं तेरा मजलूम शोहर अली हूँ। अजरकुम अला ज़हरा, या ज़हरा अमीर अल मोमिनीन मजलूम हो चुके हैं। बस आजादारों, जनाबे ज़हरा ने आंखों को खोलना चाहा, मक्तल के जुमले हैं, बीबी की एक आंख खुली, एक आंख न खुल पाई। उलमा से जरा सवाल तो करें, क्या सबब है? आजादारों, तारीख में मिलता है, सादात से माफी चाहते हुए बीबी के रुखसारों पर एक लाइन ने ऐसा तमाचा मारा, बीबी की एक आंख जख्मी हो गई। अली के एहतराम में खोलना तो चाहती है, लेकिन दोनों आंखें खुल ना पाई। बस आजादारों, जनाबे ज़हरा ने अपनी आंखों को खोला और एक मर्तबा देखा अमीर अल मोमिनीन गिरिया फरमा रहे हैं। जनाबे ज़हरा ने अपने एक हाथ को उठाया, अमीर अल मोमिनीन के आंसुओं को साफ किया। क्या हम देखते हैं अमीर अल मोमिनीन, जनाबे ज़हरा ने वो हाथ अपने सीने पर मलना शुरू किया। आजादारों, अमीर अल मोमिनीन चिल्ला कर पूछते हैं, या ज़हरा ये क्या कर रही है? नबी की बेटी ने कहा, अमीर अल मोमिनीन मैंने अपने पापा से सुना है, मजलूम की आंख से निकला हुआ आंसू जख्मी सीनों के लिए मरहम हुआ करते हैं। अजरकुम अला ज़हरा। बस आजादारों, आखिरी रिवायत आपकी ज़हमतें तमाम, जब नबी मक्का से हिजरत कर रहे थे, कुछ अमानतें अमीर अल मोमिनीन को दी थी। उन अमानतों में कुछ मस्तूरात भी हैं। तारीख में मिलता है जनाब ज़हरा की उम्र 8 बरस है। बस आजादारों, अमीर अल मोमिनीन वो अमानतें लेकर मक्का से निकले। कुफारे मक्का ने हमला किया, मौला ने जुल्फिकार को निकाला, उन लाइनों को वासिले जहन्नम किया। और एक मर्तबा आकर जनाबे ज़हरा से सवाल करते हैं, नबी की बेटी कोई तकलीफ तो न हुई? जनाबे ज़हरा ने रोकर कहा, या अली जो आपकी अमान में हो उसे क्या तकलीफ हो सकती है? बस आजादारों, अमीर अल मोमिनीन अमानतें लेकर रसूल के पास पहुंचे। एक मर्तबा रसूल ने अमीर अल मोमिनीन को सीने से लगाया और एक मर्तबा क्रिया करना शुरू किया और एक मर्तबा फरमाया, या अली आज तो अमानतें सही और सालिम लेकर आए, लेकिन अली मैं इन आंखों से वो जमाना देख रहा हूँ जब अमानत तो आएगी, उसका पहलू शिकस्ता होगा, बाजू टूटा हुआ होगा, रुखसारों पर नीले निशान होंगे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। करीम परवरदिगारा, तुझे वास्ता मजलूमियत ज़हरा का, करीम अल्लाह तुझे वास्ता अमीर अल मोमिनीन की मजलूमियत का, हमारी इस कलील सी इबादत को मंजूर और मकबूल फरमा। करीम परवरदिगारा, बानियान मजलिस के तमाम हवाइज शरिया को पूरा फरमा। करीम परवरदिगारा, इस घर में रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल फरमा। करीम अल्लाह, जिन मोमिनीन ने इल्तिमास से दुआ कहा उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। करीम परवरदिगारा, जितने मोमिनीन इस फर्श अज़ा पर हैं, करीम अल्लाह उन सबको सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र अता फरमा। करीम अल्लाह, जितने मोमिन मरीज हैं, इमाम सज्जाद का वास्ता उन्हें सेहत कामिला और शिफा आजिला अता फरमा। जितने मोमिनीन मकरूज हैं,
اپنے غیبی خزانے سے ان کے قرضوں کو ادا فرما. جتنے لوگ بے اولاد ہیں باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. کریم اللہ اس زمین کے وارث امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے نوکروں اور انصاروں میں شمار فرما بفضل کا و برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.